Hello students, welcome back. Today we are going to start unit number 3 of subject PPL, that is Principle of Programming Languages. The name of the unit number 3 is Java as Object Oriented Programming Language Overview. So in this particular lecture I am going to tell you what is class and what is object. Okay, so let's start. Okay, so classes and objects in Java. So in this particular lecture I am going to tell you what is class. I am going to help you understand how to write class. Okay, what is object. Again we are going to see the examples of how to create object, how to use object. Then we are going to see demonstration of the programs, and then I will give you some homework problems as in practice programs. So let's start with class. So class in Java. So class in Java is a blueprint, or we can say a template for creating the objects. Okay, so we know that Java is what your object oriented programming language. The main focus is given towards the object. Okay, so it is all about creating the object. So what is in class then? So class is a template, or we can say the design. Okay, or we can say the blueprint for creating an object. Okay, like we have an architect. Okay, he is giving some blueprint to us, and that blueprint will help us for constructing. Actual construction के लिए वो क्या करेगा? Help करेगा. Similarly, we are going to create an object, and to create the object we should know its template, its design. Okay, and class is helping us to understand that design, or we can say the template or blueprint. Okay, so उसके अंदर एग्जैक्टली होता क्या है क्लास के अंदर? सो इट डिफाइंस डेटा वेरिएबल्स, इसी को हम डेटा मेंबर्स भी बोलते हैं. क्लास के अंदर क्या होता है? डेटा वेरिएबल्स होता है, दैट मीन्स डेटा मेंबर्स, एंड बिहेवियर मतलब मेंबर फंक्शंस और मेथड्स. इसका दूसरा नाम है मेंबर फंक्शंस. So why we need data members and member function? Data members are helping us to store the data. Data members are helping us to store the data, and member function helps us to operate on that data. To perform some operations on that data, we need member functions or methods we can call. Okay, so a class defines data variables and behavior, or we can say the methods that the objects will have. Okay, so object will have some data members and it will have some member functions. Okay, so a blueprint is a plan or a template that is used to create something. तो blueprint exactly क्या है? It is a plan. Okay, जैसे कि मैंने बोला कि blueprint क्या है? आपका design template है. Okay, और वो क्यों चाहिए हमें? If we need to create something, then we need a plan or a template. Okay, in similar case, if you want to create an object, we need a class. So in Java, a class is called blueprint because it defines how object should be structured and behave. तो ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर किस तरीके से होना चाहिए और ऑब्जेक्ट ने कैसे बिहेव करना चाहिए, ये कौन बताएगा? हमें क्लास बताएगा. एंड दैट्स व्हाई क्लास इज इम्पोर्टेंट. Okay, just like an architect's blueprint guides the construction of a building, a Java class guides the creation of object. Okay, so this is what technical understanding of class and object. So class is a blueprint or a template or a plan for creation of object, and object is an entity which will have some data members and member functions, right, so that it can behave. तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो किस तरीके से आप क्लास को डिक्लेयर कर सकते हैं. ओके, तो ये क्लास आपका कीवर्ड है. दिस इज व्हाट योर कीवर्ड. इसके पहले आपको एक्सेस स्पेसिफायर भी लिखना होता है. अगर आपने नहीं लिखा है तो जावा का एक्सेस डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर डिफॉल्ट ही है. अगर हम नहीं लिखते तो ये डिफॉल्ट हो जाता है. ओके, अगर आपको कुछ मेंशन करना है तो आप पब्लिक कर सकते हो. सो पब्लिक यहाँ पे आपको लिखना है पब्लिक क्लास कार. तो यहाँ पे ये नेम है कार का, सॉरी क्लास का. क्लास का नेम क्या है? कार है. ओके, और उसके अंदर ये हमारा क्या हुआ? वेरिएबल और डेटा मेंबर. ये क्या है? आपका डेटा मेंबर. तो इसके अंदर क्या लिखा है? स्ट्रिंग ब्रांड.
तो स्ट्रिंग है आपका डेटा टाइप, तो ये ब्रांड क्या करेगा, ये होल्ड करेगा वैल्यू को, जो कि कौन सी टाइप की होगी, स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या है आपका, स्ट्रिंग है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, तो ब्रांड कौन कौन से हो सकते हैं, सो ब्रांड कैन बी, टाटा की कार हो सकती है आपकी, राइट, और आप बोल सकते हो हिंदाई की हो सकती है। ओके, सो अलग अलग ब्रांड्स के आपके कार हो सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक मेथड भी है ड्राइव। ओके, सो दिस इज व्हाट यूर रिटर्न टाइप। तो ये वॉइड है, मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, रिटर्न टाइप। ड्राइव क्या है, मेथड का नाम है। ड्राइव इज ए मेथड नेम। तो क्लास का नेम, मेथड का नेम या फिर वेरिएबल्स का नेम आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग से, राइट। और इस ड्राइव मेथड में मैंने सिंपल एक मैसेज प्रिंट किया है, system.out.println द कार इज ड्राइविंग। तो ये जो भी आप डबल कोट में लिखते हो ये एज इट इज कंसोल में प्रिंट हो जाता है, द कार इज ड्राइविंग, राइट। सो ये सिंपल सा एग्जांपल है। इसके अंदर हमने डिक्लेयर किया है क्लास, ये कीवर्ड कार इज द नेम ऑफ क्लास, कुछ भी आप लिख सकते हो। स्ट्रिंग ब्रांड इज अ वेरिएबल और अ डेटा मेंबर, ब्रांड इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग। देन इसके अंदर एक मेथड भी है वॉइड ड्राइव करके, वॉइड इज अ रिटर्न टाइप। वॉइड का मतलब होता है कुछ भी रिटर्न नहीं करना। देन ड्राइव मेथड में हमने क्या लिखा है, system.out.println द कार इज ड्राइविंग। तो सेम एज इट इज मैसेज क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा जो भी हमने लिखा है। सो हियर अ क्लास इज अ ब्रांड, सॉरी, कार इज अ क्लास विथ ब्रांड वेरिएबल एंड ड्राइव मेथड। ओके, सो कार क्या है, आपका क्लास है जिसके अंदर ब्रांड नाम का एक वेरिएबल है और ड्राइव नाम की मेथड है। ओके, तो रिवाइज करते हैं। क्लास क्या है, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, अ कार डिजाइन दैट डिफाइंस व्हाट पार्ट्स अ कार शुड हैव। एंड ऑब्जेक्ट क्या है, अ रियल कार मेड फ्रॉम द ब्लूप्रिंट लाइक टोयोटा और होंडा। ओके, तो क्लास के अंदर क्या क्या चाहिए, तो क्लास कार क्लास में ब्रांड चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल और भी हम वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं इसमें, फॉर एग्जाम्पल ब्रांड, देन मॉडल ईयर, कौन से ईयर का मॉडल है वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट योर क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अभी फिलहाल हमने क्लास का स्ट्रक्चर देखा है, तो ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर हमें अभी देखना है। बिफोर सीइंग द ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर, टेक एन एग्जाम्पल नंबर 2। सो एग्जाम्पल नंबर 2 में है क्लास स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे क्लास का नाम है स्टूडेंट। इसके अंदर दो मेंबर है, डेटा मेंबर। पहला है नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग, जो कि स्टूडेंट का नेम होल्ड करेगा, और दूसरा है एज, जो कि स्टूडेंट की एज को होल्ड करेगा। इफ यू नोटिस हियर, दिस इज एन इंटीजर डेटा टाइप, मीन्स व्हाट, एज शुड बी इन अ नंबर और इंटीजर वैल्यू, और नेम शुड बी इन अ स्ट्रिंग वैल्यू। उसके बाद एक मेथड है void study, system.out.println नेम इज स्टडी। नाउ नेम, जो भी इस नेम को हम पास करेंगे, जो भी वैल्यूज को असाइन करेंगे, सेम वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई मीरा नाम सेट किया। ओके, नेम इज इक्वल टू मीरा। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, मीरा। आउटपुट में जो भी है, मीरा इज स्टडी। जैसे कि मैंने बोला कि जो आपके डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये एज इट इज प्रिंट हो जाता है, तो ये एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और ये जो भी नेम यहाँ पे हम असाइन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने असाइन किया मीरा, तो यहाँ पे आएगा मीरा इज स्टडी। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ऑब्जेक्ट इन जावा। जैसे कि हमने क्लास देखा है, सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ड एंटिटी क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास। तो क्लास के ऊपर हमें क्या क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इट रिप्रेजेंट समथिंग विथ स्टेट, मतलब डेटा, एंड बिहेवियर मतलब एक्शन। जैसे हमने बोला है डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। थिंक ऑफ अ क्लास एज अ ब्लूप्रिंट एंड ऑब्जेक्ट एज एक्चुअल थिंग बिल्ट फ्रॉम द ब्लूप्रिंट। तो जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में भी देखा है कि क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक्चुअल थिंग है। सो व्हाट इज सिंटैक्स टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो सिंटैक्स में पहला आपका आना चाहिए क्लास नेम, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम, न्यू इज अ कीवर्ड, एंड देन अगेन क्लास नेम। तो सबसे पहले एग्जांपल में हमारा क्या था, कार वाज अ क्लास नेम। देन ऑब्जेक्ट नेम हम लिख सकते हैं टाटा इक्वल टू न्यू,
देन क्लास नेम। तो हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा बना, डाटा। तो वी कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वी कैन क्रिएट। ओके, तो ये भी आपको याद रखना कि फॉर अ क्लास यू कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो उसका सिंटैक्स क्या है, पहले आपको क्लास का नाम लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू न्यू, अगेन क्लास का नाम। हमारे सेकेंड एग्जाम्पल में क्लास का नाम था स्टूडेंट, देन फॉर एग्जाम्पल S1 इज माई ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू, एंड देन अगेन क्लास नेम दैट इज स्टूडेंट। दिस इज ऑल्सो अ वैलिड फॉर एग्जाम्पल नंबर 2। सो लेट्स सी, प्रीवियस केस में हमने बस क्या बनाया था, क्लास बनाया था, क्लास के अंदर डेटा मेंबर था और मेंबर फंक्शन भी था। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम रन नहीं, यहाँ से यहाँ तक ये रन नहीं होगा, क्योंकि रन होने के लिए उसके अंदर क्या होना चाहिए, मेन मेथड होना चाहिए। ओके, अगर प्रोग्राम में मेन मेथड ही है दैट मीन्स इट इज एन एग्जीक्यूशन पॉइंट। आपका जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है फ्रॉम हियर ओनली। ओके, वॉइड मेन से ही आपका प्रोग्राम क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो हमने ये पता कर लिया कि ब्रांड क्या है, ड्राइव क्या है, मेथड है, डेटा मेंबर है, मेंबर फंक्शन है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन भी मेथड लिखना है, बिकॉज इट इज एन एंट्री पॉइंट, इट इज एन एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम। टू प्रिंट दिस, क्या प्रिंट करना है हमें, ब्रांड इज ड्राइविंग। जो भी ब्रांड है कंपनी का, वो ब्रांड का नेम यहाँ पे प्रिंट करना है, और उसके बाद इज ड्राइविंग एज इट इज मुझे प्रिंट करना है। तो ये सारी चीजें प्रिंट करने के लिए, ब्रांड का नाम और ये इज ड्राइविंग में मैसेज को प्रिंट करने के लिए, तो हमें पहले क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और जैसे हमने सिंटैक्स देखा है किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पहले हम लिखते हैं क्लास का नेम, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम, उसके बाद इज इक्वल टू न्यू, अगेन क्लास का नेम। तो कार इज माई क्लास नेम, माई कार इज माई ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू, अगेन क्लास नेम। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो हमारे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, माई कार। नाउ वंस आई एम हैविंग ऑब्जेक्ट विथ मी, आई कैन एक्सेस द data members and member function, okay, with the help of this object. So my car dot, तो ये जो डॉट ऑपरेटर है, इट विल हेल्प यू टू असाइन सम वैल्यूज टू द वेरिएबल। तो वेरिएबल का नाम क्या है, ब्रांड है। तो माई कार डॉट ब्रांड इज इक्वल टू टोयोटा। ओके, तो ब्रांड क्या है, टोयोटा है। और उसके बाद माई कार, ये ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही मैं क्या कर रही हूँ, ड्राइव मेथड को कॉल कर रही हूँ। ओके, कॉल करने के बाद आपका एग्जीक्यूशन पॉइंट यहाँ है, आपका कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। पहले तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद माई कार डॉट ब्रांड टोयोटा, मेमोरी में क्या हो जाएगा, फिर जो भी जहाँ पे भी ब्रांड है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, टोयोटा हो जाएगा, राइट। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सेम ऑब्जेक्ट की हेल्प से ड्राइव मेथड को कॉल कर सकते हैं। ओके, ड्राइव मेथड को कॉल करने के बाद ब्रांड में ऑलरेडी वैल्यू कौन सी है, टोयोटा। तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, टोयोटा इज ड्राइविंग। दिस इज अवर फाइनल आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। ओके, so this is your complete program. With the help of main method, you can call the methods, you can access the data members of your class. Same example number 2. Now this is the same example, but if you notice here, class 1 that is a car, and here class 2 is what me. So we have two different classes. Okay, और class 1 मतलब कार क्लास में ये हमारा क्लास नंबर 1 है, क्लास 1, और ये हमारा क्लास 2 है। ओके, ये दोनों अलग अलग क्लासेस है। ओके, तो आप पहले का क्लास को अगर ऑब्जर्व करोगे तो इसके अंदर कोई भी मेन मेथड नहीं, मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसे एग्जीक्यूट करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, मेन मेथड चाहिए, राइट। तो हमने क्या किया, सिंपल पब्लिक क्लास मेन अलग क्लास लिया है। अभी यहाँ पे एम को ऑब्जर्व करो, एम इज कैपिटल एंड हियर मेन मेथड का एम क्या है, स्मॉल है। ओके, तो ये आपको केयर करनी है जब आप ये लिखते हो क्लास का नेम। तो यहाँ पे अगर स्मॉल एम लिखा तो इट विल गिव यू एरर। सो ये आपका जो भी क्लास है यहाँ पे आपको कैपिटल एम लिखना है, ठीक है। सो पब्लिक क्लास मेन, इसके अंदर मैंने क्या किया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, बिकॉज इट इज एन एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ माई प्रोग्राम। इसी के सिवा मेरा प्रोग्राम रन नहीं होगा। इसके अंदर मेन क्लास के अंदर मैंने कार क्लास का क्या किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ओके, इज इक्वल टू न्यू कार, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, my car dot brand is equal to Toyota, and then again the same code my car dot drive, जैसे हमने प्रीवियस केस में किया था।
तो यहाँ पे बस क्या किया है, फॉर सिंप्लिसिटी हमने क्या किया है, दो अलग अलग क्लासेस लिए हैं। तो पहले क्लास में डेटा मेंबर फंक्शन को लिखा है, क्लास को क्लोज किया। दूसरी क्लास में मेन मेथड लिखे, मेन मेथड हमारी ड्राइवर मेथड होती है, ओके, इट विल ड्राइव्स टू यू द आउटपुट, राइट। और उसके बाद उसके अंदर हमने ऊपर वाले क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। यहाँ पे इनहेरिटेंस वगैरह कुछ नहीं है, दिस इज योर नॉर्मल फ्लो, ओके। सो कार, माई कार इज इक्वल टू न्यू कार, क्योंकि हमें ब्रांड को एक्सेस करना है तो ब्रांड इज इन अ कार क्लास, so I have to create an object of car class. Then with the help of my car object I can access the brand, I can initialize the value Toyota to the brand, and then I can call the method drive, and then I will get an output like Toyota is driving, okay. So this is an industry followed approach, okay. Industry ये follow करती है कि for simplicity you have to keep single class, ओके। तो एक ही क्लास में सब आपको मर्ज नहीं करना है, तो यू कैन क्रिएट अ सेपरेट क्लास फॉर द वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड मेंबर फंक्शंस, एंड यू कैन क्रिएट एन सेपरेट क्लास फॉर मेन मेथड एज वेल। सो दोनों भी वैलिड है, दोनों में आउटपुट आएगा, लेकिन ये इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है, इंडस्ट्री ये वाला अप्रोच फॉलो करती है। सो लेट्स सी द डेमोन्स्ट्रेशन। सो फॉर डेमोन्स्ट्रेशन आई एम यूजिंग द इक्लिप्स IDE. Okay, if you don't know what is Eclipse or how to install Eclipse, please let me know in the comment box so I can help you with another video. I will generate I will create another video for you to how to install Eclipse, how to use, how to create a project and package in the same IDE. So let me know in the comment box if you don't know about the Eclipse, right? So let's see the demonstration. So this is what your Eclipse IDE. Here you have to create on file, new, then project. Okay, so some people will see directly Java project. You can click on Java project, or you can check here only. Okay, Java project. Now project name is demo, then finish. You will see the demo name will be here, available here in Project Explorer. Inside this, right click on SRC, then new, and then create one package, give a name to the package, demo again, finish, and inside this package create one class. I will show you the first approach, and then you will be able to understand what is the difference between first approach and second approach, okay. So the name of the class is car, and inside this I want a public static void main method, so you can simply click over it and finish, okay. So this is what our first approach. Inside this public class car I want one variable that is string brand, okay, and one method void drive. Inside this I am going to print system.out.println brand, that is your variable, okay, plus is driving. Now this plus is nothing but the concatenation. This is not an addition operator, it is just concatenate the value which is available in brand and is driving message, okay. So this is what our simple class, and in same class I am going to write an public static void main method, okay. So इसी क्लास में मुझे main method लिखनी है, तो मैंने यहाँ पे already लिख चुकी हूँ मैं. So what is the syntax to create an object? Car, object name, for example my car is equal to new, then car. This is what the syntax. And then after this my car की हेल्प से हम क्या करेंगे, ब्रांड को वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे टोयोटा, राइट. एंड देन अगेन माई कार की हेल्प से हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे माई कार डॉट ड्राइव, राइट. सो रन करने के लिए सिंपली ग्रीन बटन पे क्लिक करो तो आपको कंसोल में आउटपुट मिलेगा टोयोटा इज ड्राइविंग, राइट. और जैसे मैंने बोला कि आप एनी नंबर ऑफ क्या कर सकते हो,
ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिंपली यही सिंटैक्स कॉपी पेस्ट करती हूँ। तो माई कार 1 यहाँ पे अगर मैंने किया तो माई कार 1 होगी टोयोटा, उसी को मैंने ड्राइव किया। माई कार 2 विल बी अ टाटा, राइट। तो माई कार 2 जो भी है ऑब्जेक्ट, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अगेन ब्रांड को वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे। ब्रांड इज इक्वल टू नाउ टाटा, ठीक है। एंड अगेन माई कार 2 डॉट ड्राइव। यहाँ पे टाटा ड्राइव, टाटा इज ड्राइविंग अस, इस तरीके से आपको आउटपुट मिल जाएगा। रन एज जावा एप्लीकेशन, ओके। So for car 1, my car 1, Toyota is driving, and second, my car 2, Tata is driving. Okay. Similarly, you can create two separate classes, one for class car and one for just calling purpose. Okay. For example, इसी डेमो पैकेज में मैं मेन क्लास क्रिएट करती हूँ। ओके, कैपिटल M देना है आपको, और इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, और यहाँ से मैं हटा देती हूँ कार से। ये जो भी कोड है हमारा, इसको मैं कमेंट करती हूँ। ओके, मतलब पूरा हटाना है, तो हटाने से अच्छा मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे लिख देती हूँ। मेन मेथड में ऑलरेडी मैंने मेन मेथड लिया हुआ है, जस्ट पेस्ट ओवर हियर, अनकमेंट दिस, ओके। और यहाँ से जो भी हमने लिखा था वो कोड में भी हटा देती हूँ। तो यहाँ पे सिंपल क्लास कार है, स्ट्रिंग ब्रांड, वॉइड ड्राइव एक मेथड है, और क्लास हमारा क्लोज हो चुका है, राइट। सेकेंड अप्रोच में हमने वही देखा था, अलग अलग क्लासेस लिए थे, और सेम यहाँ पे अलग क्लास मेन है, इसके अंदर मेन मेथड है। यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे हुए हैं, और उसके हेल्प से, ऑब्जेक्ट के हेल्प से मैंने ब्रांड वैल्यू इनिशियलाइज की है, टोयोटा एंड टाटा, और ड्राइव मेथड मैंने कॉल की है। नाउ यहाँ पे हम होंडा, टोयोटा के बदले होंडा ऐड कर देते हैं, होंडा। So just run it as Java application. So you will see Honda is driving and Tata is driving. तो दोनों कार्स के आउटपुट हमें मिल रहे हैं। Okay, so this is what your demonstration. So in exam आपको property now it's time with example to do some practice programs. So the first program is create a student class with name and age and then display the values. तो हमें क्या करना है, स्टूडेंट का नाम लेना है और एज लेना है। जैसे हमने अभी ब्रांड की वैल्यू ली थी, कार के ब्रांड की, वैसे स्टूडेंट का नेम एंड एज की वैल्यू क्या करनी है, इनिशियलाइज करनी है, और सेम वैल्यूज हमें डिस्प्ले करनी है। सिमिलरली क्रिएट अ रेक्टेंगल क्लास लेंथ एंड विड्थ। ओके, तो रेक्टेंगल क्लास में आपको क्या करना है, लेंथ लेना है, विड्थ लेना है, और उसके बाद कैलकुलेट एरिया। ओके, एरिया को कैलकुलेट करना है। ओके, तो इन दोनों प्रोग्राम्स के आंसर आप कमेंट में पोस्ट करो, और इफ यू नीड एनी हेल्प हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, सो आई कैन हेल्प यू विद अनदर वीडियो। ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एंड सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। कंस्ट्रक्टर एग्जैक्टली होता क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, ओके, और उसका ओवरलोडिंग क्या है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। Okay, so subscribe to this channel to get new videos, and if you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.